بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ آئیے سنتے ہیں آج کی سچی خوفناک کہانی۔ میرا سسرال بہت بڑا تھا، ان کے رشتہ دار ملا جلا کر اچھا خاصا خاندان بن جاتا۔ سسر ماشاءاللہ بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ ویسے تو میں بیرون ملک ہی رہتا تھا، لیکن جب کبھی چھٹی آتا تو سسرال والوں کے پاس ضرور جاتا۔ وہاں میرے بڑے بزرگوں کے ساتھ خوب محفل جمتی تھی۔ سسرال والوں کے ہاں ذمہ داری کو خاندانی شان بان سمجھا جاتا تھا اور یہ لوگ بڑے پیمانے پر ذمہ داری کرتے تھے۔ ان کے پاس مال مویشی بھی اچھی خاصی تعداد میں تھے۔ فصلوں اور مال مویشیوں کو ملا کر اچھی خاصی آمدن ہو جاتی تھی، جس سے ان کے گھروں کا نظام الحمدللہ بہت اچھا چلتا تھا۔ میرے سسر نمبردار محبوب صاحب نے اپنے خاندان کے سائز کے اعتبار سے گاؤں کے وسط میں ایک بہت بڑا گھر بنا رکھا تھا۔ جتنا بڑا خاندان تھا اس سے کئی گنا بڑا گھر تھا۔ ویسے تو یہ گھر اپنے دور کے لحاظ سے بڑا ہی خوبصورت اور شاندار تھا۔ ہر کمرے میں ایک الماری، سارے کمرے بڑے بڑے دروازوں کی مدد سے ایک بڑے ہال سے منسلک تھے۔ ہال کا ایک بڑا استقبالیہ دروازہ ایک بڑے برآمدے میں کھلتا تھا، جبکہ ہال کی دونوں کھڑکیاں ایک قبرستان کی طرف کھلتی تھیں، جہاں سے اکثر ہی ٹھنڈی ہوا آتی تھی، اور یہ جگہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے پورے گاؤں کا خوبصورت منظر بھی پیش کرتی تھی۔ غرض یہ کہ یہ کھڑکی بیٹھنے والوں کو محسور زدہ کر دیتی تھی۔ ہاں، لیکن رات کے وقت یہاں بیٹھ کر باہر تکنا ذرا ہمت والا کام تھا۔ ہال کی بائیں جانب ایک مہمان خانہ تھا، جس کا دروازہ بھی قبرستان کی جانب ہی راستے پر واقع تھا، جبکہ دائیں جانب ایک قدرے اندھیرا سا کمرہ تھا، جس کی دیوار میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا۔ عموماً یہ کمرہ رہائش کے طور پر تو استعمال نہیں کیا جاتا تھا، لیکن دادی اماں نے زیادہ تر وہاں کھانے پینے کی اشیاء، مثلاً مکئی کے دانوں سے بھرا ایک پرانا بڑا صندوق، ایک چرخہ اور کھیتوں میں بیلوں کو جوتنے والے ہل اور دیگر بہت سے آلات ذمہ داری اس کمرے میں ذخیرہ کر رہے تھے۔ گھر کے سبھی افراد اس کمرے میں جانے سے کتراتے تھے، کیونکہ گھر کے لوگ بمشکل باہر کے لوگوں کے، جن کا وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا، ان سبھی کا مشترکہ خیال تھا کہ اس کمرے میں کسی نادیدہ قوت کا بسیرا ہے۔ رات کے وقت تو درکنار، دن کے وقت بھی ہم لوگ وہاں جانے سے ڈرتے تھے۔ البتہ دادی اماں چونکہ بزرگ تھیں، اس گھر کے چپے چپے کو جانتی تھیں۔ وہ اس کمرے میں جاتی تھیں، لیکن وہ بھی مرغیوں کے لیے مکئی کے دانے نکالنے جاتی تھیں۔ خیر، ہم سب معمول کے مطابق زندگی کے دن گزار رہے تھے کہ سردیاں آن پہنچیں۔ میں 2 سال کے لیے بیرون ملک سے چھٹی پر آیا تھا۔ ان ملکوں میں تو سردی لہو جما دینے والی ہوتی ہے۔ میری کوشش ہوتی کہ میں سردیوں میں گھر جاؤں۔ حسب معمول میں نے سسرال جانے کا پروگرام بنایا، کیونکہ میری بیوی اور میرے بچوں کو اپنا ننھیال بہت زیادہ پسند تھا۔ بہرحال میں نے سب بچوں اور بڑوں کے لیے گفٹ پیک کیے اور سیدھا بیوی بچوں کو لے کر سسرال آ گیا۔ حسب معمول سب لوگ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ میرا تو خصوصاً استقبال کیا گیا، جبکہ میری ساس محترمہ نے میرے لیے خالص دیسی گھی میں سویاں پکا کر رکھی تھیں، جو بہت ہی مزیدار تھیں۔ شہروں کی نسبت دیہات میں لوگ اکثر رات کو سویرے سو جاتے ہیں اور صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ سورج چڑھنے سے پہلے ذمہ داری کے کام نپٹا دیتے ہیں، کیونکہ دن کو بہت زیادہ گرمی اور حبس ہوتا ہے۔ شام کو کھانے پر وہی پرانی جنات، چڑیلوں اور پریوں وغیرہ کی داستانیں محو گردش ہوتی تھیں۔ انہی خوفناک داستانوں میں اس کمرے کا ذکر بھی بار بار ہوتا تھا۔ گاؤں کے ماحول میں داستانوں، کہانیوں اور لوک داستانوں کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ مجھے بھی ان کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی مجھے جنات، بھوت پریت اور ان چیزوں پر کوئی یقین تھا، مگر پھر بھی مجھے ان کہانیوں میں عجیب سی دلکشی محسوس ہوتی تھی۔ سو میں اکثر ہی اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ کر یہ کہانیاں سنتا تھا۔ لیکن اس بار قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے ترجمے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھا۔ سورہ جن کی تفسیر جب پڑھی تو جنات کا وجود میرے ایمان اور یقین کا حصہ بن گیا۔ میں سوچنے لگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بھی
आग से पैदा किया है और इस कायनात का हिस्सा बनाया है, लेकिन सरे राह चलते फिरते जिन्नात से मुलाकात करना या चारपाई पर आकर जिन्नात का सो जाना और फिर इंसानों से बातें करना, इन चीज़ों पर मेरा फिर भी कोई यकीन सिरे से नहीं था, बल्कि मैं अक्सर बातें मजाक में उड़ा दिया करता था। मेरी सास जहांदीदा औरत थी, कहती बेटा इस कमरे में जिन्नात वैसे भी मौजूद हैं, लिहाजा तुम इस तरह की कोई बात न किया करो कि तुम्हें लेने के देने पड़ जाएं। ये मखलूक अपना वजूद मनवाने पर आ जाए तो बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। मैं अम्मा से कहता, अम्मा जैसे वो अल्लाह की मखलूक हैं, हम भी अल्लाह की ही मखलूक हैं, मैं उनसे डरता नहीं हूँ। अशरफुल मखलूकात को आग से बनी मखलूक से क्या डर है। सास अम्मा कहती, बेटा मैं ज़्यादा तफसीर तो नहीं जानती, मगर तुम जैसे बहुत सुने यही कुछ कहा जो तुम अभी सबके सामने कह रहे हो, लेकिन सभी लोग गवाह हैं कि उनका जो हशर हुआ वो ज़माने के लिए इबरत बन गए। दादी की बात पर बजाय डरने के मैंने कहा, क्यों न इस बात की तसल्ली कर ली जाए कि वाकई ये बात सच है कि जिस कमरे में इन सभी लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि यहाँ जिन्नात आबाद हैं, इस कमरे का सच जानने के लिए और इस बात की तह तक पहुँचने के लिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस कमरे में जाकर बाकायदा एक रात गुजारूंगा, और अगर ये बात गलत साबित हुई तो मैं सब लोगों को कहूँगा कि अपने अल्फाज वापस ले लें। बहरहाल दिल में हल्का सा डर भी लग रहा था कि अगर मेरी बात सच साबित ना हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसीलिए मैंने किसी को बताए बिना ही ये काम करने का फ़ैसला किया। रात को जब सब लोग सो गए तो मैंने अपनी चारपाई अपने कमरे से उठाई और उसे खिसकाकर उस कमरे में पहुंचा दिया। कमरे में गंदम की बोरियां वगैरह थीं। मुश्किल से मेरी चारपाई अपनी जगह पर पूरी हुई थी। मैंने ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं किया, तकिया बिछाया और सो गया। मुझे क्या पता था कि इस कमरे की हकीकत क्या है, लेकिन रात को सोने से कबल मैंने वज़ू के लिए पानी और नमाज का मसल्ला अपने पास रख दिए थे। मैं अपनी तरफ से ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि जिन्नात वज़ू और नमाज का मौका नहीं देते। मैं बेफिक्र होकर सो गया। रात के तकरीबन 12-1 बजे होंगे। मैं बिल्कुल पुरसुकून गहरी नींद सो रहा था कि अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे जिस्म पर किसी चीज़ का दबाव बढ़ रहा है। फिर मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा है जो इंतहाई ठंडा और यख है। मेरी आँख खुल गई। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। मैं समझा कि ये मेरा वहम है, क्योंकि रात को कहानियाँ सुनते हुए शायद कोई ऐसा ही खौफनाक अंसर मेरे जहन पर सवार हो गया था। फिर मैं सोचने लगा कि अगर ये वहम था तो फिर मेरे चेहरे पर उस ठंडे हाथ के नतीजे में जो ठंडक पैदा हुई थी वो क्या था। मैं चारपाई पर उठकर बैठ गया। फिर मैंने जो भयानक मंजर देखा वो दिल को दहला देने वाला था। चारपाई पर बैठे हुए मुझे छोटे से रोशनदान से कोई साया अंधेरे से कमरे में दाखिल होता नज़र आया। ये छोटे से रोशनदान से दाखिल हुआ और एक बड़ी दियो कामत औरत की शक्ल इख्तियार कर गया। इसका सर छत से टकरा रहा था। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी अनजानी और नादीदा क़ुव्वत ने मुझे जकड़कर मेरे चारों शाने चित कर दिए हों। उसके जिस्म से गंदी बदबू के भभूके उठ रहे थे जो मुझे सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर रहे थे। मैंने देखा उस औरत की आंखों से शोले निकल रहे थे। उस खौफनाक औरत ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो गंदी बू से मेरा सांस फूलने लगा। मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी हिद्दत इतनी थी कि मुझे लगा कि मुझे अभी आग जला डालेगी। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई तो उसके भूरे बाल मेरे चेहरे से टकराए। उसने सफ़ेद दांतों से मुस्कुराकर मुझे देखा। मुझे इस सब से बहुत डर लग रहा था। औरत का वजूद नाकाबिले यकीन था। ऐसा लग रहा था कि इस कमरे में यकदम जानवरों की आलाइशें पड़ गई हों जिन पर कीड़े मकोड़ों का राज हो। वो औरत मेरे सामने खड़ी अपने दांतों की नुमाइश कर रही थी और मेरे तो जैसे हवास बंद हो रहे थे। मेरी आवाज़ मुकम्मल जामिद हो गई थी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक और साया रोशनदान के रास्ते उसी कमरे में दाखिल हुआ।
और कमरे में दाखिल होते ही एक बड़े देव कामत जिस्म में तब्दील हो गया। उसके जिस्म पर काला लिबास था, जिस्म पर कांटे लगे हुए थे और उसके हाथ हद से ज़्यादा लंबे थे। उसकी आंखों की भुएं नीचे को लटकी हुई थीं। उसके बड़े नाखून जिनसे सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। करीब था कि मेरा चेहरा नोच लेते। वो मेरे पास आया, उसने मेरे सर पर हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा पत्थर है जो मेरे सर पर रख दिया गया है। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। मैं वज़ू करना, नमाज़ पढ़ना तो भूल ही गया। उसने मेरा सर ऊपर किया। मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर एक खौफनाक कहकहा लगाया। मैं उसकी आवाज़ सुनकर कांप उठा। कहकहा लगाने से जब उसका मुंह खुला तो उसके खौफनाक दांत एक बार फिर ज़ाहिर हुए, जिनसे ये लगता था कि अभी हाथ के हाथ मुझे ज़िंदा चबा जाएगा। मैं हैरान था कि इतना छोटा रोशनदान और इतने बड़े जिस्म जिनके सर छत से टकरा रहे थे, इतनी छोटी सी जगह में दाखिल कैसे हुए। मेरी तो मौत मुझे अपने सामने नज़र आ रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला कि एक और साया कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ रखी थी। उसके चेहरे पर नूर ही नूर था। ये न मर्द मालूम होता था, ना ही इसके खुदुखाल औरतों जैसे थे। इसके बाल लंबे थे और आंखें इंतहाई गहरी और काली थी, जबकि बाकी दो खौफनाक जिस्मों के मुकाबले में वो काफ़ी माकूल और खूबसूरत नज़र आ रहा था। इस तीसरे वजूद के आते ही कमरे में हब्स और फैली बदबू ख़त्म हो गई। एक खुशबू ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मुझे अपना बोझ हल्का होता महसूस हुआ। आज मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि खुदा की ये पोशीदा मखलूक न जाने कितनी अनगिनत तादाद में है और इस कदर खौफनाक है कि सिर्फ़ पैदा करने वाला ही जान सकता है। मेरे सीने पर इतना बोझ था कि बता नहीं सकता। दर्द से मेरा बुरा हाल था। मेरे दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ चुकी थी। मुझे न जाने इस हाल में कितना वक्त गुजर गया। अचानक फजर की अजान शुरू हो गई तो वो तीनों साए उस छोटे रोशनदान से वापस बाहर निकले और गायब हो गए। इस सूरत हाल से गुजरने के बाद मुझे सख्त बुखार हो चुका था। मैं जिन्नात की हकीकत जान गया था। जिन्नात क्या होते हैं, इस रात से पर्दा उठाने के लिए कमरे में एक रात गुजारना काफ़ी थी। सुबह उठते ही सास अम्मा मेरे पास आईं। मेरी हालत देखकर घबरा गईं। कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हें मना भी किया था ना कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। तुमने मेरी बात हवा में उड़ा दी। तुम हम सब का मजाक उड़ाते थे। तुमने किसी की बात पर यकीन नहीं किया बेटा। खैर अच्छी खासी सुनाने के बाद इन्होंने जल्द अज जल्द सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दिया। पानी पर दम करके मुझे पिलाया और वहाँ से जल्द बाहर निकलने का कहा। इन्होंने एक बाल्टी में पानी लिया, उसमें कुछ खुश्क पत्ते डाले और कहा, बेटा जल्दी से इस पानी से नहा कर नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह खैर होगी। मैंने पानी की बाल्टी ली, गुसल खाने में गया, फजर की नमाज पढ़ी। मुझे काफ़ी आराम आ गया था। अब मैं जिन्नात के बारे में काफ़ी बखूबी वाकिफ़ हो गया था। इसके बाद मैंने तौबा कर ली कि मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा तजस्सुस था कि आखिर इस रोशनदान के बाहर जाकर देखूं तो सही कि वो जगह कैसी है। मैंने दादी से छुप छुपा कर वहाँ जाकर देखा तो गौर करने पर मालूम हुआ कि रोशनदान की दीवार के साथ पुरानी कब्रें भी मौजूद थीं और कब्रों के सिरहाने एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसकी शाखें घनी थीं और उस रोशनदान से टकरा रही थीं। मुझे उस कमरे से ज़्यादा वो दरख्त आसिबी लगा जिसकी शाखें रोशनदान से टकरा रही थीं। मैं इस जगह को देखकर वापस आने के लिए पलटा ही था कि मैंने देखा हवा का एक सरसराता हुआ झोंका बाहर की तरफ गया। मैंने बेइख्तियार नज़रें उठाकर पीछे की तरफ देखा तो वही सफ़ेद कपड़ों वाला वजूद वहाँ से हवा की मानित सरसराता हुआ बाहर को जा रहा था। एक लम्हे को मुझे लगा कि वो नेक जिन्नात का सरदार है जो यहाँ पर बुरे जिन्नात को इंसानों को तंग करने से रोके रखता है। खुदा जाने इसमें कितनी हकीकत है। मैंने तो जो देखा मन्नो अन आपके सामने बयान कर दिया। अब मुझे आप ही बताइए कि वो कमरा आसिफ ज़दा था या वो दरख्त। मेरी जगह आप होते तो आप इस सूरत हाल में क्या करते? इस कहानी को सुनते हुए आपको कैसा लगा
और इस कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।